So student, good morning. First of all, I write my mobile numbers. You can call me uh, through this number if you have problem in your math subject. One important things I want to say you that according to syllabus in previous video I had already completed uh, chapter 2 in NCERT book and chapter 3 in RS Raval book. Both chapters are same, whole number. Means I had completed whole numbers from both books, NCERT and RS Agrawal. So according to syllabus, your new chapters means next chapters. Better to say next chapters is playing with number. PLAYING. Playing with numbers. In NCERT book, it is given in NCERT book. NCERT book. And in RS Awal book, topic name is given factor and multiple. Factor and multiple. Very interesting chapter. Both are same. There is no difference between only differ in its name, but both are same. Playing with numbers or factor and multiple. This is this topic. This chapter name is given in RS Agarwal book. RS Agarwal. Okay, and this is given in exercise 2, but this is given in exercise 3.1. It starts with 3.1. प्लेइंग विथ नंबर जो है वो आपके एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है जो स्टार्ट हो रहा है एक्सरसाइज 3.1 से, और फैक्टर एंड मल्टीपल ये RS अग्रवाल में है, ये स्टार्ट हो रहा है एक्सरसाइज 2 से। दोनों सेम चैप्टर है। इसमें भी प्लेइंग विथ नंबर में भी आपको फैक्टर और मल्टीपल पढ़ना है। जितना मटेरियल इसमें पढ़ना है वही इसमें भी पढ़ना है। दोनों में सिर्फ नाम का अंतर है, नहीं तो भीतर मटेरियल सेम है। जो चीज़ आपको इसमें पढ़ना है वही चीज़ आपको इसमें भी पढ़ना है, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए हम लोग पहले RS अग्रवाल से स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 2 जो है अभी हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, और 2 जब ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग एक्सरसाइज 3 फिर जो है वो NCERT बुक से ख़त्म करेंगे। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सरसाइज 3 जो इसमें दिया हुआ है NCERT बुक में वो प्लेइंग विथ नंबर होगा, और RS अग्रवाल में जो एक्सरसाइज 2 है वो फैक्टर एंड मल्टीपल है। दोनों का मटेरियल सेम है, इसलिए चूँकि आपके स्कूल में दोनों बुक पढ़ना है इसलिए हम दोनों से वीडियो बनाएंगे। तो पहले हम लोग इस RS अग्रवाल को ख़त्म करेंगे, जैसा कि ख़त्म करते हैं पहले RS अग्रवाल, उसके बाद फिर सेकेंड में NCERT बुक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं RS अग्रवाल बुक। So student, let's start. Factor and multiple. Your first point is given factor. So first of all we have to know that what is factor. So in definition we can write a factor of a number, a factor of a number
is an exact exact divisor divisor of that number Once again, I read its definition. A factor of a number is an exact divisor of that number. Suppose I write a number 20. So which number is exactly divisible? Means this number 20 is exactly divisible of which number? So 1, 2, 4, 5, 10, 1, 2, 4, 5, 10 and last 20. So these number 20 is exactly divisible by these given numbers. So these numbers are called the factor of 20. Very easy language I want to say you. These numbers are the factor of 20 because 20 is exactly divisible by every given numbers. Suppose I write another numbers 15. So 1, 3, 5 and 15. These four numbers are called the factor of 15 because 15 is exactly divisible by these numbers 1, 3, 5 and 15. But 2 is not the factor of 15. 2 is not the factor of 15 because 15 is not exactly divisible by 2. 2 से पूरा डिवाइड 15 नहीं होता है, तो फैक्टर हम उसी नंबर को कहेंगे जिस नंबर से गिवन नंबर जो है वो पूरा डिवाइड हो जाए. जैसे यहाँ 20 है तो 20 जो है वो जितना भी नंबर यहाँ दिया हुआ सबसे पूरा डिवाइड हो जाएगा. लेकिन अगर हम 3 का बात करें तो क्या 3 से 20 डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें रिमाइंडर बच जाएगा. तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए. ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि अगर हम 20 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2. इसका मतलब है कि 20 में 3 से डिवाइड तो होगा लेकिन पूरा डिवाइड नहीं होगा. And the second point is multiple. So we can write its definition. A number is said to be multiple of any of its factors. Once again I repeat, multiple, a number is said to be multiple of any of its factor. So 15, we can say it another way, if 15 is the multiple of 5. 15 is the multiple of 5. How many times? 3 times. मतलब कि 15 में 5 से क्या 15 जो है वो 5 का क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि 15 में जो है 5 से डिवाइड पूरा लग जा रहा है. लेकिन 16 जो है वो 5 का मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि 16 में 5 से पूरा डिवाइड नहीं लगेगा. डिवाइड तो लगेगा लेकिन पूरा डिवाइड नहीं लगेगा, रिमाइंडर बच जाएगा. इसीलिए ए नंबर इज सेड
टू बी मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। मतलब एनी ऑफ इट्स फैक्टर का मतलब जैसे ये हुआ ना 15 का, अभी ऊपर में ही हम क्या बताए थे कि ये नंबर जो है इसका फैक्टर कहलाएगा, क्योंकि इस नंबर में इससे पूरा पूरा डिवाइड लग जाता है। उसी तरह 15 में भी 5 से डिवाइड पूरा पूरा लग जाएगा। इसीलिए 15 जो है वो 5 का फैक्टर मल्टीपल कहलाएगा। फिर से बोल रहे हैं, 15 जो है वो 5 का मल्टीपल कहलाएगा और 5 जो है वो 15 का फैक्टर कहलाएगा। ये फैक्टर हो जाएगा, ठीक, और ये जो है मल्टीपल हो जाएगा। क्योंकि मल्टीपल इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो है इसमें इससे डिवाइड लग जाएगा और इसी का एक नंबर ये है, क्योंकि 5 से जो है 15 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। और 5 के टेबल में 15 आता है, इसलिए मल्टीपल होगा। लेकिन 16 जो है वो मल्टीपल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 से अगर इसमें हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। तो अब हम अगले वीडियो में जो है इसके आगे का पॉइंट जो है उसको पढ़ेंगे। फैक्टर और मल्टीपल में अगर कोई भी दिक्कत हो तो निश्चित रूप से पूछना है।